Hello, everybody. Greetings from Zeal Wellness. This is registered dietitian Sakina here, your health and lifestyle mentor and the founder of Zeal Wellness. So, today we are going to talk about something interesting, something that is a health issue that is increasing amongst women a lot. Okay. One of the hurdles that they really can't lose weight, they cannot do anything, and they're seeing their symptoms increasing day by day. Yes, I'm talking about thyroid. Now, thyroid cases are increasing, and obviously, owing to the lifestyle changes, the hectic life schedules that we have, and the we don't take that much care of our health that we really need to do. Okay. Now, when it comes to thyroid, there are a lot of questions and queries that people have. That what can we have? What kind of vegetables that we have to avoid? And there are a lot of myths that occur. So today, I hope that all the information that is shared by Zeal Wellness is of some help to all of you. Let's get started. Okay, so here we go. Just a quick background about Zeal Wellness that Zeal Wellness came into picture in 2014, and our motto is energizing health, celebrating life. And we are located at Baikala, Santa Cruz, VT, and Tardeo. We're also into online consultations. Apart from personal consultations, we are also into health talks, giving webinars, seminars with corporate schools, colleges, banks. And we love writing nutrition articles and educating people. So, yes, we do write nutrition articles also. Okay, coming to our topic for today, nutrition for thyroid patients. What do we need to do? What do we need to take care of? Okay, so here a little quick introduction of about thyroid is that there are various conditions related to your thyroid gland, which is located over here. Okay, there's hypothyroidism, where the thyroid hormones are not produced enough. That's called hypo. Okay, hyperthyroidism is where there are excessive amount of thyroid hormones that are produced by the gland. There are three hormones: T3, T4, and TSH. Okay. And yes, thyroid cancer, which is again becoming common day by day. Now, depending on the type of conditions that you are suffering from, thyroid can be treated with various medications. There's hormone replacement therapy, there's surgery, and there are other radiation therapies and all of the other procedures that the doctor will take care of. Now, in addition to these treatments, research shows that there are certain dietary interventions, including some supplements, which may help you in treating these certain thyroid disorders. Okay. A quick review of the symptoms that you usually see in the hypothyroidism is, and hyper are have been, put them down over here, where hair loss is common, but you will see a lot of fatigueness and a little enlarged thyroid gland. There's weight gain, dry skin, a lot of joint pains and muscle pains, and there is severe PMS, depression, and mood swings that occur in patients with hypothyroidism. In terms of hyperthyroidism, you usually lose weight, sleep disturbances occur, there are little tremors that occur, shortness of the breath, especially when you're climbing up the stairs. This sweating that happens when you're walking even a little bit, irregular menstrual periods. So this is again very common in hyperthyroidism. Okay, moving ahead, which are the nutrients that would help you in thyroid metabolism, in improving your thyroid, is iodine. That's very very important, about 150 mcg each day. Selenium. Now, why are these two very very important and they are first two in the list? Is because they're required for the thyroid hormone synthesis and the functioning of these thyroid hormones that we spoke about, T3, T4, and TSH. Okay. Then comes to zinc. Zinc is important again hormone के production के लिए. Iron, so zinc, selenium, iron, all of these are used कि ये thyroid hormone जब body में बनता है उसको बनाने के लिए nutrients की जरूरत है. So that is why we need to get these nutrients in our body. Apart from that, B complex, tyrosine, vitamin C ज्यादा लेना है, omega 3 fatty acids ज्यादा लेने हैं. ये सारी चीजों का ध्यान रखना है. आयोडीन के लिए एक प्रिकॉशन डेफिनेटली है कि वी कैन नॉट टेक मोर देन 1100 mcg ऑफ आयोडीन पर डे.
ओके क्यों? क्योंकि हायर लेवल्स, कोई भी चीज एक्चुअली बॉडी में ज्यादा लो तो वो नुकसान करती ही है। ओके, आयोडीन लेवल्स हाई होने से काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट दुखना, ब्लोटिंग होना, आपके टेस्ट बड्स में फर्क आ जाएगा, आपको मेटालिक टेस्ट आ जाएगा, शायद आपको फीवर आ जाए, आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, डायरिया हो सकता है इंस्टेड। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपका थायराइड ग्लैंड और ज्यादा एनलार्ज हो जाएगा, विच इज अ कंडीशन जिसे गोइटर कहते हैं। ओके, इसमें पूरा आपका थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि ज्यादा हमें आयोडीन नहीं लेना है। ओके, मूविंग अहेड, आयरन डेफिशिएंसी अगर है आपको, जैसे कि अनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन लो है, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज ये सारी चीजें, आयोडीन, आयरन, टाइरोसिन, सेलेनियम, जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में हार्मोन जो थायराइड का है वो बनाता है, टी हार्मोन T4 से T3 जो कन्वर्जन होता है उसमें काम आता है। तो अगर ये सारी विटामिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी में T3 हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, कम होगा, जिससे आपको हाइपोथायराइड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, सो क्या खाना चाहिए आपको? व्हाट शुड यू हैव इफ यू हैव थायराइड? एग्स, एग्स आर एक्सट्रीमली गुड। एग्स आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन, सेलेनियम, जो आपकी थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए हेल्प करेगा। ओके, स्पेशली एग में 20% सेलेनियम एंड 15% ऑफ आयोडीन है। जितना आपको दिन में बॉडी में लगना चाहिए वो आपका 20%, 15% तो एग में ही आ जाता है। ओके, आप कहाँ कहाँ एग इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉर्मल जैसे हम अंडा रोटी, अंडा ब्रेड खाते हैं या अंडा सैंडविच खाते हैं वो तो है ही, पर आप उत्तपा में बना सकते हो, उत्तपा में डाल सकते हैं आप। रोटी, दो रोटी के बीच में एग डाल के एग क्यूसेडिला बना सकते हैं, फ्रैंकीज रैप्स रोल्स में ले सकते हैं। छोटे छोटे एग अपम्स बनते हैं, जैसे कि वो नॉन स्टिक एग अपम, अपम मेकर जो आता है, जो हॉलो पैन है, फ्राई पैन है अपना, तो वहां पे आप एग मिक्सचर को खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के, थोड़ा सा ओट्स डालेंगे, फ्लेवर स्पाइसेस आपके हिसाब से, एंड आप स्पूनफुल वो हॉलो बॉक्सेस में आप डालेंगे, and then you can cook it for a minute, flip it again, cook it for 1 minute. Very good fluffy egg appams will be ready. Okay, then you apple, pear एंड आपके सारे सिट्रस फ्रूट्स ये काफी मदद करते हैं थायराइड पेशेंट्स को। सिट्रस फ्रूट्स में बहुत काफी सारा विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा एंड थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में भी हेल्प करेगा। ओके, एप्पल्स एंड पेयर्स एंड प्लम्स क्यों ज्यादा कहते हैं हम? क्योंकि उसमें पेक्टिन ज्यादा है। पेक्टिन्स क्या करता है? आपकी बॉडी में से मर्क्यूरी को डिटॉक्सिफाई करता है, निकालता है। सो डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी फ्रॉम मर्क्यूरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेक्टिन करता है, जो एप्पल, पेयर्स एंड प्लम्स में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम अप टू योगर्ट, दही, वेरी वेरी गुड। ओके, आपकी आयोडीन रिक्वायरमेंट्स जो बॉडी की है वो फुलफिल करता है। आपका थायराइड ग्लैंड चलने में, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसके लिए कर्ड इज वेरी वेरी गुड। डाइजेशन के लिए कर्ड इज वेरी वेरी गुड। आप आपकी हर एक मील में आप कर्ड, छाछ, या फिर स्मूदी या लस्सी या रायता ले सकते हैं, या फिर मिड मील्स में जैसे कि 10-11 बजे या शाम में 5-6 बजे आप एक छोटा सा कप दही का ले सकते हैं। आप सैलड्स में डाल सकते हैं। सूजी को आप सोक करने के लिए, रवा, जैसे आप अप्पम बनाते हो या उत्तपा का बैटर बनाते हो तो उसमें आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ी बना सकते हैं। चीला का बैटर आप बनाते हो मूंग दाल का या बेसन का, तो उसमें थोड़ा सा दही उसमें भी आप डाल सकते हो। ओके, अगर आप दही को एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन करो या क्लॉथ, चीज क्लॉथ स्ट्रेनर में स्ट्रेन करिए और उसको पूरा पानी निचोड़ के आप निचोड़ने के लिए रख दिया पूरी रात, वो पूरा पानी निकल जाएगा और जो थिक कर्ड रहता है, हंग कर्ड, उसको आप डिप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फेवरेट हर्ब्स उसमें डाल के, सीजनिंग डाल के, यू कैन यूज इट एज अ सावर क्रीम ऑल्सो, यू कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्स ऑल्सो। ओके, उसके बाद आफ्टर योगर्ट वी हैव चिकपीस। चिकपीस आर वेरी गुड फॉर थायराइड पेशेंट्स। आपके बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी अगर आप चिकपीस इंक्लूड करते हो आपकी डाइट में। सैलड्स की तरह बना के ले सकते हो, नॉर्मल आप करी जैसे बनाते हो वैसे ले सकते हैं। चिकपीस का हमिस बनता है, तो हमिस आप डिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके सैलड्स में भी डाल सकते हो, आपके रोल्स या रैप्स या फ्रैंकीज में भी डाल सकते हैं। Okay, next we have seaweed. Seaweed is very very good and a very natural source of iodine. Okay,
नाउ आप उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? वॉकमे सीवीड जो आता है, हॉट वाटर में आप 20 मिनट्स उसको रखिए, फिर उसको ड्रेन कर दीजिए। उसके साथ आप राइस विनेगर लीजिए, सेसमे ऑयल, ग्रेटेड जिंजर, हनी एंड थिनली स्लाइस्ड आपके जो ग्रीन अनियंस है, उसको आप मिक्स करके आप सीवीड सैलड बना के आप ले सकते हैं। ओके। दूसरा, आप हिजकी सीवीड जो होता है उसको सोक कीजिए 10 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर, उसको ड्रेन कर दीजिए एंड उसको आप फिर मिक्स कीजिए। मिंस्ड रेड अनियंस है, श्रेडेड कैरेट्स, कुक्ड किनोवा ले सकते हैं एंड ग्रीन पीस, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली ऐड द चॉइस ऑफ योर ड्रेसिंग दैट you like for flavor. Okay. Okay, next we have pumpkin seeds. Pumpkin seeds are very good in zinc. All your non-vegetarian foods are also very good in zinc. आपकी जो organ meats है, they are very good in iron and zinc. ओके, सो अगेन थायराइड hormones, जो हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स है उनके लिए ये काफी सारी चीजें अच्छी है, जिसकी वजह से उनके थायराइड hormones ज्यादा प्रोड्यूस होंगे बॉडी में। ओके, मिड मील्स के लिए pumpkin seeds are very good. You can have fistful of these pumpkin seeds. You can sprinkle them on salads also. Okay, iodized salt आपकी छाछ में डाल सकते हैं, सैलड्स में डाल सकते हैं, नॉर्मल कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वेजिटेबल टॉपिंग्स अगर आप इवनिंग स्नैक पे बनाते हो उस पे आप डाल सकते हो। रोस्टेड नट्स या जो आपका सीड्स का मिक्सचर है उसमें आप डाल सकते हैं। ओके, नाउ ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड फॉर हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स। ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे उनके हॉर्मोन्स बनने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा बनेंगे। बट जो हाइपर थायरॉइड पेशेंट्स हैं उनके लिए ये सारी चीजें कम लेनी है, रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन में लेनी है। नट्स, दे आर एक्सेलेंट सोर्सेज ऑफ सेलेनियम, प्रोटीन, ओमेगा 3, आप फाइबर, ऑल दीज आर वेरी गुड सोर्सेज। सो आप उनको आपकी मिल्क शेक्स वगैरह में, स्मूदीज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्नैक की तरह इवनिंग में ले सकते हैं। आप एनर्जी बॉल्स बना सकते हैं। नाउ एनर्जी बॉल्स मतलब कि आपने खजूर लिया, उसको आपने चर्न कर दिया, ब्लेंड कर दिया विद ऑल ऑफ दीज नट्स मिक्सचर्स, और फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बना दिए। सो दे आर वेरी गुड। यू कैन मेक प्रोटीन एनर्जी बार्स बनते हैं, ओट्स, जैगरी, उसमें खजूर डालते हैं, उसमें हम पाउडर्ड नट्स डाल सकते हैं, पाउडर्ड सीड्स डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, एंड उसके आप बार्स बना सकते हैं। वेरी हेल्दी इवनिंग स्नैक। ओके, नेक्स्ट, what do we need to keep in mind? Goitrogen containing foods. Now कई बार थायराइड पेशेंट्स के अंदर जो ये देर आर सर्टन फूड्स जो आपकी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें बोलते हैं गोइट्रोजन। नाउ दीज गोइट्रोजन कंटेनिंग फूड्स आर सोयाबीन बेस्ड जो फूड्स है, टोफू, टेम्पे, एंडोमेबियन, सोय मिल्क। फ्रूट्स में पीचेस, पेयर एंड स्ट्रॉबेरीज। बेवरेजेस में कॉफी, ग्रीन टी एंड अल्कोहल। वेजिटेबल्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स। सो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। उनको आप ओकेजनली ले सकते हैं, बट इफ द डिश इज मील इज वेल कुक्ड, अगर पकाने के बाद आप उसको ले सकते हैं, जिससे एटलीस्ट कुछ हद तक गोइट्रोजन मर जाते हैं जो प्रेजेंट है फूड स्टफ में। बट डोंट हैव रॉ कैबेज सैलेड्स, और रॉ कैबेज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना आपकी मील में, या रॉ टोफू नहीं खाना है आपको दैट वे। ओके, now what are the important pointers? Apart from all of this, exercise is very very important. जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे, आपका थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग बेटर होगा। ओके, स्ट्रेस आपके हार्मोन, स्ट्रेस की वजह से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी में, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे थायराइड की फंक्शनिंग में तकलीफ होती है। सो जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना आपका थायराइड बढ़ेगा। एंड मेडिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मेडिकेशन का टाइमिंग सेम होना चाहिए। ट्राई एंड टेक योर मेडिकेशन ऑन टाइम एवरी सिंगल डे, स्किप नहीं करनी चाहिए आपकी मेडिसिन। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट एक्टिविटी, एक वर्ड सर्च का पजल है। ईमेल के ऊपर आपको उसको सॉल्व करना है फटाफट, और उसका पिक्चर भेजना है व्हाट्सएप पे, नंबर पे। सो द फर्स्ट विनर हु गिव्स ऑल द करेक्ट आंसर्स विंस अ गिफ्ट हैम्पर। ओके,
आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काफी सारा हेल्प करेगी. एनी अदर डाइट डाउट्स दैट यू हैव और यू वांट टू प्लान योर पर्सनलाइज्ड डाइट विद अस, प्लीज डू email us your queries or WhatsApp it to us. We are just a call away. of sincere request, प्लीज हमारे सोशल हैंडल्स को फॉलो कीजिए सो दैट आपको काफी सारी वीडियोस, काफी सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन, रेसिपीज की जानकारी मिलती रहेगी. ओके, we are available on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, everywhere. Just Zeal Wellness type karna hai and you will get it everywhere. Okay. Till then, all the very best. Let us know if you have any doubts. Take care. Bye bye.